روزہ سیمینار کا یہ جو شادی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کا اعلیٰ سے شکر ہے بڑی کامیابی سے اختتام کو پہنچا ہے۔ اب ہمارا دوسرا سیشن جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ سیشن پروفیسر مین سعید صاحب کے زیر نگرانی اور صدارت جو ہے عمل میں آئے گا۔ اس میں 4 روحانہ نگار اپنا جو کہیں گے، محمد شاہد صاحب، فرزانہ افران صاحبہ، ڈاکٹر داؤد حسین اور مناف صاحب۔ ہم سرد ہے کہ میسور یونیورسٹی میں اس اہم موضوع پر سیمینار ہو رہا ہے۔ آج کی اس نشست کی صدارت جناب مین سعید صاحب کر رہے ہیں۔ آپ ایک معنیات شخصیت ہیں، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن یہ میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ حاضرین کو آپ سے متعارف کراؤں۔ آپ ریاست کے مشہور افسانہ نگار ہیں، آپ ایک مؤرخ اور کئی کتابوں کے مؤلف ہیں۔ آپ سابقہ صدر شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی ہیں۔ صدر اجلاس کی اجازت سے میں پہلے جناب محمد شاہد صاحب کو دعوت دیتی ہوں۔ آپ کا موضوع ہے افسانے کا بدلتا منظرنامہ۔ انہوں نے اردو افسانوی ادب کے بدلتے منظرنامے میں انسان کی بازیاب۔ اردو کا افسانوی ادب قصہ، حکایت، تمثیل اور داستان سے جدا ہوا ناول اور افسانے تک پہنچا ہے۔ قصہ کا لفظ حقیقی اور خیالی دونوں ہی قسم کے ایسے مختصر بیانات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں کہانی کی خوبیاں موجود ہو۔ حکایت ایک ایسی مختصر کہانی کو کہتے ہیں جو کسی اخلاقی اور اصلاحی مقصد کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ یہ ایک طرف قصے سے مشابہ ہوتی ہے، دوسری طرف اس میں تمثیلی عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ حکایت میں کرداروں کے قول و عمل سے اخلاقی تلقین کا کام لیا جاتا ہے۔ تمثیل میں اصل موضوع سے براہ راست بحث کرنے کی بجائے تشبیہات اور اشتہارات سے کام لے کر تخیلی و تصوراتی کرداروں کے ذریعے کہانی بیان کی جاتی ہے۔ یہ کردار مرئی و غیر مرئی، ذیت و غیر ذیت دونوں ہی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تمثیل کا مقصد اخلاقی اور اصلاحی ہوتا ہے۔ داستان افسانوی ادب کی سب سے زیادہ وسیع اور عریض صنف ہے۔ یہ اپنے اندر افسانوی ادب کی دیگر اصناف کو جذب کرنے کے بعد بھی اپنی ایک امتیازی شناخت رکھتی ہے۔ اس کی بنیادی خصوصیت رومان یعنی حقیقت سے بعید تقریبی ہوئی ہے۔ ادب میں داستان کی داغیں تو اسی وقت سے پڑھنا شروع ہو گئی تھی جب انسان نے قبائلی زندگی کی خانہ بدوشی کو ترک کر کے کسی ایک مقام پر رہنا شروع کیا اور زرعی معیشت کو زندگی کا وسیلہ قرار دیا۔ اس نئی تہذیب کے آغاز پر اسے اپنے قبائلی دور کے واقعات، معرکہ آراریاں، انفرادی اور اجتماعی تجربے، مشاہدے اور روایات کا حصہ رہی تھیں جن کی شدت تکرار اور بیان کی لذت سے داستان کو معروض وجود میں لایا گیا۔ داستان میں خیالی دنیا، خیالی واقعات کا بیان ہوتا ہے۔ موقوف الفطرت کی تخیل خیزی، حسن عشق کی رنگینی، مہمان کی پیچیدگی، بیان کا لطف، انہی عناصر سے داستان کی عبارت ہے۔ داستان میں باطنی اور فکری پیچیدگی کا وجود ممکن نہیں۔ قصہ، حکایت، تمثیل اور داستان کا بنیادی مقصد سامع۔ بنیادی طور پر داستان سنی جانے والی صنف سخن ہے۔ بعد میں داستانوں کو تحریری شکل میں پیش کیا گیا۔ قصہ، حکایت، تمثیل اور داستان کا بنیادی مقصد سامع کو فرحت، آسودگی اور ذہنی انبساط کا سامان فراہم کرنا ہے اور اس کے در پردہ اخلاقی تربیت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ ان داستانوں کا مطالعہ حقیقی انسان کی فطری، جبلی اور نفسیاتی حوالے سے کرنا قابل بس ہے۔ ابھی داستان کو شعور اس قدر بلند اور اس کی فکر اس قدر پختہ نہیں ہوئی تھی کہ وہ انسان کی تہ درد سچائیوں کا سراغ لاتا۔ ناول کی وہ خصوصیات جو باقی نثر میں اسے داستان سے ممتاز کرتی ہیں، حقیقت نگاری، کردار کی اہمیت اور فلسفیانہ گہرائی ہے۔ تقیل کی کار فرمائی ناول میں بھی نظر آتی ہے۔
لیکن یہاں تخیل کسی دنیا کی حقیقتوں کی بازیاب کی صورت ہے. ناول میں توجہ کا مرکز کردار ہوتے ہیں جس کا تعلق ہماری دنیا کے جیتے جاگتے انسانوں سے ہوتا ہے. اس میں واقعات اور کرداروں کے مابین ایک ناقابل شکست رشتہ ہوتا ہے. ناول کی تخلیق کے لیے تضادات، تصادم، کشمکش اور ارتعاشات سے گزرنا پڑتا ہے جو کائنات اور انسان کے ظاہر باطن میں جاری ساری ہیں. ناول نفر باطنی حقیقتوں کی تلاش کے لیے بھی خارجی حقیقتوں کا طلبگار ہے. وسائل کی محدودی نے انسان کو سائنسی حقیقتوں اور جدید علوم کی دریافت کے لیے مجبور کیا. انسان اپنی تمام تر اخلاقی اور روحانی ترقی کے باوجود خود کو مادے سے آزاد نہیں کر سکتا. وہ اپنی روٹی، کپڑا، مکان اور زندگی کی دیگر مادی ضروریات و آسائش کا محتاج ہے. ان مادی وسائل کے ذریعے وہ روحانی سکون اور جسمانی آرام کی حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی یہ مادی ضروریات اس کے اہل کے پیداواری وسائل سے وابستہ ہیں، جن کی تبدیلی کے ساتھ خوراک، پوشاک، معاشرت، فکر، سماجی و تہذیبی رشتے، عقائد و تصورات بلکہ ساری دنیا بدل جاتی ہے. وسائل کی تلاش میں انسان نے نئے تہذیبی مراکز اور شہر آباد کیے. پیداواری وسائل کی تبدیلی اور جدید علوم کے فروغ نے نہ صرف معیشت کے جاگیردارانہ نظام کی عملیت، تہذیبی جنون، مذہبی عصبیت کی ظلمت کو پارا کر دیا جس نے صدیوں سے مظلوم انسان کو اپنے فریب میں مبتلا کر رکھا. نئی پیداواری وسائل کے ساتھ قدیم طبقاتی نظام و اقدار، حد بندیوں اور رشتوں کو توڑ کر ایک متوسط طبقہ وجود میں آتا ہے. زندگی کے اس تبدیل شدہ منظرنامے میں صنعت و حرفت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. نئے تجارتی و کاروباری رشتے وجود میں آتے ہیں. نئی منڈیاں اور بازار قائم ہوتے ہیں. دفتر اور بینکوں کا نظام متعارف ہوتا ہے. اس طرح سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور پھر طبقاتی کشمکش کا آغاز ہوتا ہے. ترقی پسند ادب میں خواب و ناول کی افسانہ کسی عہد کی ترجمانی ہوتی ہے، لیکن ترقی پسند ادب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اور انسان کو کلی و اجتماعی سطح پر پیش کرنے کے بجائے اسے طبقات میں تقسیم کر دیا گیا ہے. مالک و مزدور اور امیر و غریب کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی گئی ہے. مالک کو ظالم اور مظلوم اور مزدور کو مظلوم اور امیر کو جابر اور غریب کو مجبور تصور کر لیا گیا ہے. جبکہ مالک بھی انسان ہے اور مزدور بھی انسان ہے، امیر بھی انسان ہے اور غریب بھی انسان ہے. انسان کو فطری، جبلی اور نفسیاتی نہج پر پیش کرنے کے بجائے اسے معاشرتی اور اقتصادی سطح پر بیان کیا گیا ہے اور یہی رویہ آگے چل کر نعرے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ترقی پسند ادب کا بیشتر حصہ عینیت پسندی پر مبنی ہے اور انسان کی مکمل اور ہمجہت تصویر پیش کرنے میں ناکام ہے. مادہ پرستی سے بیدار، زندگی کی یکسانیت سے مانا، تیز رفتار اور تغیر پذیر حالات سے تھکا ہارا، لاحاصلی کے احساس سے کشمکدہ اور تنہائی کا شکار انسان زندگی کے نئے شعور آگاہی سے روشناس ہوتا ہے اور ذات و کائنات کے اظہار کے لیے نئی فکر، نیا اسالیب، نئی علامتیں، نئی تشبیہات مشکلات اختراع کرتا ہے اور ادب میں جدید رجحانات و ملانات سامنے آتے ہیں. انسان کو قاعدی حقیقتوں کے وسیلے سے سمجھنے کے بجائے اس کے باطن کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انسان اور زندگی کے حیرت انگیز گوشے روشن ہوتے ہیں. احساس و فکر کے نئے جہان نواز ہوتے ہیں. معلوم سے نامعلوم اور نامعلوم سے معلوم کا سفر جاری رہتا ہے. لیکن بتدریج جدید ادب شدت پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور تخلیقی عمل اس قدر گنجلک الہام زدہ ہو جاتا ہے کہ زندگی دھندلے آئیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور انسان سائل ہے. جدیدیت کے بعد ادب کے کئی نظریات اور رجحانات سامنے آتے ہیں. ان میں ایک نظریہ مذہب سے بھی وابستہ ہے اور انسان اور زندگی کو مذہب کے طریقے سے دیکھ کر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. مذہب کی نظر میں انسان نطفہ ناپاک سے پیدا شدہ ہے، گناہ گار ہے، خود غرض ہے، احسان فراموش ہے، مادہ پرست ہے اور دوزخی ہے اور اس کی جسمانی اور روحانی تربیت کے لیے اخلاقیات کے دفتر کھول دیے جاتے ہیں. گویا ادب نہ رہ کر نظام اخلاق میں تبدیل ہو جاتا ہے. بیچارہ انسان نصیحت و پن سے خوفزدہ ہو کر یہاں وہاں منہ چھپاتا پھرتا ہے.
इसी दौरान अदब पर माँ बाप जदीदियत की इल्हाक होती है और जदीदियत की हिसाब की उलटी जाती है। जदीदियत को बीमार जहनों और यासियत ज़दा लोगों की पैदावार कहकर उसे अदब के दायरे से खारिज करने की सही की जाती है। इंसान को ज़ात के हिसाब से निकालकर उसे माशरे की ज़िंदगी का जुज़्व लायक बनाया जाता है और इलाकाई और मुकामी अनासिर व अवामिल इस कदर पर इस कदर जोर दिया जाता है कि अदब मुख्तलिफ गोशों और कानून में मुनक़सिम हो जाता है और इंसान की इंफरादियत को हैसियत हजारों टुकड़ों में बिखर जाती है। कानून का अदब, गोरों का अदब, दलील अदब मालूम नहीं। अदब को मजीद कितनी शाखों में तब्दील कर दिया जाएगा और इंसान मजीद कितने हिस्से और बकरों में मुनक़सिम होगा। अदब के बदलते मंजरनामे में आखिरी पैराग्राफ है मजमून का। अदब के बदलते मंजरनामे में मुझे उस लम्हे की तलाश है जिसमें इंसान की वहदत का इतराफ़ किया जाएगा और इंसान को तारीखी, माशरती, सियासी, इक़्तिसादी, मजहबी पस मंजर से हटकर जिसमें इंसान कहीं गुम हो गया है, फितरी और जबली सतह पर उसे असर-ए-नौ दरियाफ्त किया जाएगा, जहाँ इंसान न अरबी होगा, न अजमी, न मुसलमान होगा, न हिंदू, न यहूदी होगा, न ईसाई, न दलित होगा, न ब्राह्मण, न मालिक होगा, न मजदूर, न अमीर होगा, न गरीब, बल्कि इंसान सिर्फ इंसान होगा। शुक्रिया। वो अपना मकाला तर्ज़ मज़ाक का बदलता मंजरनामा पेश करने के लिए जायज़ कबूल करना। उर्दू अदब का बदलता मंजरनामा नस्ली तर्ज़ मज़ाक के हवाले से ये है मकाल का मुनासिब हाथ से खामसा के साथ इसे मिजाज ही है जो इंसान को दूसरे जानवरों से मुमताज करती है। इंसानी जिंदगी हुस्न और हंसी से इबारत है। इस दारुल में हर इंसान अपना दर्द और हौसला साथ लेकर आता है। गम को अंगीज करने का सबका तरीक़ाकार जिक्र करना होता है। बकौल शायर, तुम हम का बोझ रोके भी हल्का न कर सके, तुम हम का बोझ रोके भी हल्का न कर सके, मैंने हंसी की आंखों में हर गम छुपा दिया। जिंदगी का निज़ाम कायनात एक हमवार सतह पर गर्दिश करता है। जब इंसान की खुदगर्जी की वजह से इसमें तब्दीली पैदा होती है तो फनून लतीफ़ा को तहरीक मिलती है। बकौल अल्लामा इक़बाल, इंसान को तबीयत आसमान से और जुबान ज़मीन से मिलती है। जुबान ही से मिजाज फैलता है, इसी से शख्सियत की अक्कासी होती है, इसी से समाज की कजरवी और तज़ादात की तीव्री में फनकार अपनी जुलानी तवा से शम्ल लगाता है। अहमद नक़वी कासिमी कहते हैं कुछ अदब को जिंदगी का आईना होना चाहिए, मगर जिंदगी तल्ख है, इसमें कुछ रंगीनी पैदा करनी पड़ती है। कोने की गोली पर शक्कर चढ़ जाए तो इसे बच्चे भी मिल जाते हैं। शगुफ्ता निगरी के कई शीट हैं, जैसे तलविंदा, रम्ज़, चश्मा, इस्तेहज़ा, ज़िला-ज़िकर, लतीफ़ा-बी, कुकरबाजी वगैरह। इसको हर दिन पे मसलन शायरी नस्ल यानी नॉवेल, अफसाना, खाका, आफ़िकी, इंशाइया, कॉलम निगारी, सफरनामा, खुतूत, डायरी निगारी, गुलदार, तनक़ीद और जिंदा नाम में बढ़ता है। हर दुआर के अदब में तनज़ुरान उस मुल्क के सियासी, मुआशी और तहज़ीबी तग़य्युर व तबद्दुल और इर्तिक़ा व इनक़लाब के साथ वाबस्ता रहता है और समाजी नशीब व फ़राग के साथ उसका तसव्वुर भी बदलता रहता है। उसकी गर्मागर्मी उस वक्त शराब पर होती है जब किसी समाज या सियासी निज़ाम की शान में रहती है, जब बुनियादी अफ़कार में कशिश शुरू हो जाती है। ऐसे वक्त में अफराद वो समाज की इनफरादी और इज्तिमाई तंज़ियाती रूह हरकत में आती है। इलाही नहीं कि ऐसे मौके पर फन तराकी भी करे। हकीकत ये है कि इसके फरोग और ज़वाल का इंहिसार कौमी और इंफरादी अखलाक पर होता है। मसलन उर्दू के अव्वलीन मज़ाहिर में सौदा, मुसफ़ी, इंशा, रंगीन, चिरकीन, जाफर रत्ती वगैरह को शुमार होता है। इन सब के निगाह में इब्तिदाल, फहशिकारी, तंगनज़री, मसखरापन, इस्तेहज़ा और हक़ाक़त पाई जाती है। यही कमजोरियाँ उनकी सोसाइटी में भी थीं। जिंदगी का हर शोबा पस्ती और इन्हिताब की अमीर गुजारों में फंसा था। आमलियत और दिल सुभानी की बरकत से समाजी एहसास और सियासी जज्बा करीबुल खत्म था। हसद,
ऐश परस्ती, दरबारी रंगरलियां उरूज पर थी, कुव्वत अमल कम थी, बदमस्ती और बुरियानियत ज्यादा थी। उर्दू में तंज़निगाह का फनी तौर पर आगाज अवध पंच से होता है। ऐसा कभी उर्दू में सौदा की शख्सियत की एक ऐसी है जिसमें फनी सलाहियत भी है और इस्तेदाद भी, जिसको आगे चलकर मुआसराना चश्मों ने कैद कर लिया, जिनके साथ उर्दू अदब की भी ट्रेजेडी बन गई। इसके बाद जुबान को उरूज तक ले जाने वाले गालिब के यहाँ एक फन की शौकी जिंदगी के सौदे नजर आते हैं। उन्होंने नस्ल में तंज़-ए-ज़राफ़त की दास्तान डाली। उनके वजूद बरजस्ता और बेतकल्लुफ़ ज़राफ़त की पाकिज़ा मिसाल हैं। गालिब की अज़मत का राज उनके एहसास-ए-ज़ीस्त और शौक़-ए-ग़म में बयां है, जो इज्तिमाई भी है और इंफ़रादी भी। उनका मिज़ाज आंसुओं और मुस्कुराहट के संगम पर तख्लीक़ किया गया है। इसी से उनकी हौसला-अफ़ज़ाई का अंदाज़ा होता है, जो बकौल उनके एक नया तरह पहले है। तब इसमें समाजी हालात का नक्शा तो मिलता है, मगर उसकी कमजोरी को उजागर करने और तमद्दुनी या तामीरी रफ्तार को उभारने की कोशिश नहीं की गई। जिंदगी की रफ्तार तो है, मगर उसमें हरकत पैदा करने का रुझान नहीं है। मिजाज का दूसरा दौर और पंच से शुरू होता है। रतनलाल सरशाह एक नए उर्दू दीवानी की हैसियत से सामने आते हैं। इसमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबसरा मिलता है। समाजी तबाह, शख्सियत की तहरीक, अंग्रेजों की आमद, सब पर खुशगवार शौकियाँ, उचटती ज़रबें और हरीफाना चश्मा और खासा सियासी शोर मिलता है। इसी ने तंज़-ए-ज़राफ़त का नया तस्वुर पेश किया। मुंशी सज्जाद हुसैन, पंडित रतननाथ सरशाह, पंडित त्रिभुवनीनाथ हिज्र, मुंशी बेग सिकंदरी, नवाब सैयद मोहम्मद आज़ाद, मुंशी ज्वाला प्रसाद बर्क, मुंशी अहमद अली शौक़ और अकबर इलाहाबादी की वाबस्तगी ने अवध पंच को ज़राफ़त के रायपुर वक्त का बेहतरीन तर्जुमान बना दिया, जो माशरती तौर पर मशरक़ी और सियासी तौर पर मग़रिबी था, जो कांग्रेसी अक़ीदे का हामी और बैरूनी साम्राज्यत का दुश्मन था। उसकी जुबान रखने में थी, जिसने रियायत को काम किया। तंज़-ए-ज़राफ़त का तीसरा दौर शुरू होने से पेशतर एक अबूरी अहद का आगाज़ होता है, जहाँ से निगाह की फिक्र में ठहराव शुरू हुआ, जहाँ जिंदगी का शऊर पहले से ज़्यादा पाया जाता है। इसमें फन के अवतार का एहसास बढ़ गया और तारीखी और तकाई हक़ फ़रमाने का एहसास भी पूर्ण कराया। उस दौर के लिखने वालों में सैयद महफूज अली, बदायूनी, महदी आबादी, सुल्तान हैदर शिबली, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना ज़फ़र अली खान और अब्दुल मजीद तरियाबादी का नाम आता है। इन सबको जुबान पर अबूर हासिल था और इनके तंज़ का निशाना अंग्रेज़, अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ियत थी। खिलाफत की तहरीक ने आखिर तीनों मौलानाओं के आर्ट को मज़ीद चमका दिया था। इसी तीसरे दौर में ख्वाजा हसन निज़ामी, फितरत बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीक़ी, मुल्ला नूरी, अज़मत बेग चौकतारी, मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन नक़वी साहब, शौकत थानवी का नाम आता है। जब हमारी सोसाइटी में जिंदगी के आसार पैदा हो चुके थे, अदब में जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लिया था। अदीबों ने जिंदगी और अदब से बाहरी रिश्तों को समझना शुरू कर दिया था। फर्क सरता मशरिक़ी थे तो फितरत मग़रिबी अदब के शनावर। मुल्ला नूरी के पास अल्फाज का रखरखाव था तो रशीद अहमद सिद्दीक़ी के पास मुकामी तंज़ियाती रूह। शौकत थानवी के यहाँ जज्बातियत थी, सहाफ़त थी, तो ख्वाजा हसन निज़ामी के पास मच्छर और झींगे जैसी अलामतें। मजमूई तौर पर इन सब ने उस दौर की सियासी, तहज़ीबी और तालीमी मसाइल पर संजीदा शौक़ी के साथ रोशनी डाली है। तंज़-ए-ज़राफ़त के चौथा दौर तरक्की पसंद अदीबों का है। उर्दू में तरक्की पसंदी का दौर दूसरी जंग के बाद शुरू हुआ। इस दौर में तंज़-ए-ज़राफ़त का बड़ा सरमाया नज़्म के बजाय नस्ल में ही मिलता है। प्रेमचंद के अफ़साने में अदब को जिंदगी के सांचे में ढाला। एक बड़े तबक़े ने मग़रिबी और रूसी नज़रियात के तसादुम के बाद खुद को कार्ल मार्क्स के हवाले कर दिया और नफ्सियाती नुक्ते नज़र से फ़्रॉइड को अपना लिया। अब अदब में वाक़ियत और हक़ीक़त का इस्तेमाल बढ़ गया। सज्जाद ज़हीर, इस्मत चगताई, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मिंटो, अहमद नज़ीम कासमी,
महेंद्रनाथ, गुलाम फखर काकोरी, मुमताज मुफ्ती, इब्न हिशाम और कन्हैया लाल कपूर ने इसी नजरिए को अपने स्थानों, सफरनामों, इंशाअल्लाह, खाकानिगारी और कॉलिंग की रोशनी में आगे बढ़ाया और नजरियाती शऊर को तकिया किया अपने दौर की कमजोरियों और नाहमवारियों को मुंदरिया बताया। 1947 के बाद जंग आज़ादी, जमीनी तकसीम, हिजरत, फसादात, सकाफती उथल-पुथल, मजहबी जुनून और कायरतुल्मियों की इसी दौर में विरासत तो जमीन के साथ संत निज़ाम निगारों का भी बंटवारा हो गया। कृष्ण चंद्र ने खुसूसन अपनी मुशाहिदे और तखलीक की शायरी के साथ बेला अक़लियत पसंदी और बेला गहरी इंसानी दोस्ती का इशारा किया। हवाई तरह से इंसानी हों कि फसादात के अफसाने हों या गधी की सरगुज़िश, इंसानी नफ्सियात को इसमें हमारी एहसास के साथ बढ़ता गया। कन्हैया लाल कपूर ने उर्दू की ज़बून हारी के खिलाफ आवाज़ उठाकर सियासी और समाजी ज़िंदगी के पेचो खम की झलकियाँ दिखाई और ये मौज़ूआत जदीद फैशन से लेकर फैमिली प्लानिंग तक फैल गए। इसके बाद जदीदियत का दौर आया, इसमें तंज़ीम की जानिब ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अलबत्ता एमरजेंसी के बाद हालत निगाह मिलने लगा। तेजी से बदलते हुए मुल्क के सियासी समाजी निज़ाम में एक तरफ तबक़ाती मुफ़ादात और नज़रियात से टकराव और दूसरी तरफ तवज्जो पज़ीर इंसानी रिश्तों, रवैयों और कदरों ने ऐसी सूरत इख्तियार की कि उस पूरा शोध गर्दाब में मिज़ाही निगारों को ज़ब्त और ठहराव से काम लेना पड़ा। पाकिस्तान में कर्नल मोहम्मद खान, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, सिद्दीक़ सालेह, मुशर्रफ अताउल काज़मी और हिंदुस्तान में फिक्र तौसीफ़ी, मुश्तबा हुसैन, यूसुफ़ नाज़िम, अहमद इमान पातशाह, नईम यूसुफ़ और वजाहत अली ज़मीरुद्दीन ने ज़रावत की बात संभाली। उस दौर की तहजीबी और ज़िंदगी के साथ अपने मनफलों और सरगर्मियों के एतबार से बहुत वसी, पहरेदार, पेचीदा और पुरअसर हो गई और इसकी मुनासिबत से इसकी माकूलियत और नामकूलियत, सूझबूझ और गौहर कहना ऐसा भी हो गया। अब से 14 सदी पहले मिर्ज़ा शौकी तरावी और ज़ुबान के शाकिराना इस्तेमाल का तारीख था। आज की शगुफ्तगी, शाइस्तगी और दर्दमंदी कमती है। इस दौर के तंज़ निगाह में ख्वाजा अब्दुल गफ़ूर का ये कारनामा भी याद रहेगा कि उन्होंने लतीफ़ा गोई को फ़न का तब्दील किया। ये बात का काबिल ज़िक्र है कि इस दौर में ख़वातीन भी मिज़ाज की जानिब तवज्जो करने लगी और बाद मुकामात मसलन घरेलू मुकामात में मर्दों से ज़्यादा कामयाब रही। बिलख़ुसूस सलमा सिद्दीक़ी, शफ़ीक़ा फ़रहत, बानी सत्तार, अतिया परवीन, लतीफ़ फ़ातिमा का नाम लिया जा सकता है। सन 1990 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनी की आंधियाँ ने ज़ुबान को माश के साथ जोड़ दिया। अब ये ज़ुबान ज़िंदगी के हर शोबे में नज़र आई। इसी से रोज़गार का उसूल, दौलत, औहदात और मराहत वाबस्ता हो गई। उर्दू ज़ुबान तासुब का शिकार रही। बदहाल आवाम की फिक्र के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो किराए में, खुद गर्जी में, मशीनी ज़िंदगी में, मफाद परस्ती में और मगरिब की नक्काली में एक सैर रवानी इंसानी वजूद की दुनिया देखना डाली, जिसकी वजह से आज जरा दिगरगुन सूरत हाल का शिकार है। इन नामुसाइद हालात में किसी के दिल की कहीं नहीं खिलती। ज़माने की बातें समूह से जहन ऐसा परागंदा है कि किसी खुशगवार तहरीक की तख्लीक कम ही हो पाती है। हालात के कचरेपन से अलबत्ता एक कड़वाहट सी जन्म लेती है। ये तरक्की तंज का रूप धार लेती है। यही वजह है कि आज मिज़ाही गानों का रुझान मिजाज की जानिब कम और तंज की तरफ ज़्यादा है। आज मिजाहिया कॉलोनीगारी हिंदुस्तान में सिमटती जा रही है। गुज़िश्ता 2 दशकों में उर्दू तंज निज़ाम इस फरोग के आसार नजर आते हैं। इसमें जिंदा दिलाने हैदराबाद की खदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मौजूदा मैदानी कारों की बड़ी तादाद इसी इदारे से वाबस्ता रही है। कई अहम मजमून इस इदारे में शायर किए और तकरीबन 5 दहाइयों से इसका तर्जुमान शगुफ़ा मुस्तफ़ा कमाल साहब की हिदायत में पाबंदी से शायर हो रहा है। इसके तहत मिज़ाही कारों की एक नई पीढ़ी भी सामने आई, जिनकी तहरीरों में उर्दू तंज़ मिज़ाज के रोशन मुस्तक़बिल की बशारत दी जा सकती है। उनमें तारीख़ मेरी मसीह अंजुम, असदुल्लाह, पाकिस्तान में शफ़ाक़ अहमद बिन मुख्तार तुर्की, परवेज़ गुलामदी, मुनीरुद्दीन क़ुरैशी, नुसरत फ़हीम, सरवर जमाल, नाबिल हमज़ा फ़रीद और खुशतर,
फौजिया चौधरी, मंजूर उस्मानी, वहाब अंजलि, शकील एजाज, जनपद खोकर, मोहम्मद आदिल, हलीमा गुजर वगैरह वगैरह अपने अंदाज में और तलबुलराह की मुख्तलिफ हैसियत की लोक फलक समाते नजर आते हैं। मजबूरी तौर पर नजरियात से दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, ताहम नक्काशी से दूसरे दर्जे का करार देकर सिर्फ इतनाई करती है। जब तक नक्काश इस फन के तनकीदी जायजे से दिलचस्पी न लेंगे, उस वक्त तक इस फन की तरक्की की राहें मुतयन न होगी। और मैं डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब को अपना मकाला तनकीद का बदलता मंजरनामा पेश करने की दावत देती हूँ। 20वीं सदी शेर व अदब में तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, माबाद जदीदियत, तश्कील, रद्द तश्कील, तामीर, रद्द तामीर, इन्हराम व इंसराम और तामीर व तकरीब के नए नए विजन देकर अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ गुजर गई। शेर व अदब जो मुखालिफ और मुतज़ाद जहानात के बाहमी तफ़ाइल के साथ उभरा था, नई सदी में उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने पेशरुओं के अफकार और महसूसात को मुनासिब इस्तक़रार के साथ मुनक़्क़िस किया। 21वीं सदी के फनकारों में दुनिया के मसाइल, ग्लोबल कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी की अलगार, सार्फी माहौल, सियासी जबर, न्यूक्लियाई असलहों की भागदौड़, सरमाए का तसल्लुत और नए नए खदशात जैसे मौज़ूआत को अपने फन पारों में बरतने की कोशिश की। गैर ज़रूरी तजरीदियत और इबहाम की जगह इबलाग व तरसील पर जोर दिया जाने लगा, यानी जो बात कही जाए वो बराह रास्त कही जाए और बगैर किसी पेचीदगी के साथ कही जाए। क्लासिकी अदब से अज़सर नौ इस्तेफादा करने की कोशिशें जोर पकड़ने लगी। शेर व अदब को नए टूल्स के जरिए समझने और समझाने की कोशिशें भी जोर पकड़ी। शेर व अदब की इस सूरत हाल ने तनकीद निगारी में भी नुमायां तब्दीली पैदा की। शेर व अदब को जांचने, परखने और समझने की नई सूरत पैदा की गई। नई नस्ल के कलमकारों तनकीद निगारों ने बने बनाए कुलिये के तहत शेर व अदब को समझने और समझाने से एहराम किया और मतन को बुनियाद बनाकर गुफ्तगू करने की कोशिश की। आम तौर पर हमारे यहाँ ये रिवायत थी कि तनकीद की ज़बान अदब मुश्किल, पेचीदा और भारी भरकम हो। नई नस्ल ने शऊरी तौर पर कोशिश की कि ज़ुबान आसान, आम फहम और रवां हो ताकि शेर व अदब की तफ़हीम और तजज़िये में आसानी पैदा हो जाए। नई नस्ल के तख्लीक़कारों के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि उनके फन पारों पर कलम उठाने वाला कोई नाकिद नहीं था। खत आवर और पेशरू नाकिदीन ने उन पर लिखना कसरे शान समझा और बाज ने यहाँ तक कह दिया कि नई नस्ल को अपना नाकिद खुद तलाश करना चाहिए। गर्चे इस तरह के मशवरे दिलसोज और हौसला शिकन थे, लेकिन इस रवैये ने नई नस्ल के लिए मुहिम्मीज़ का काम किया और उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ अपनी नस्ल के तख्लीक़कारों की तख्लीक़ात का तदब्बुर व ताक़ुल के साथ मुहासिबा करना शुरू किया। साथ ही अपने पेशरुओं के सरमाइयों का भी तहलील व तज़किया किया जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि एक नया जहाने मानी सामने आने लगा और नई तनकीद की एक मुस्बत रविश हमारे सामने हमारे मंजरनामे पर बड़ी शद्दोमत के साथ उभरती हुई नजर आई। अगर हम पीछे मुड़कर पिछली सदी में तहक़ीक़ पसंदों और हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के हवारियों की तनकीद पर एक निगाह डालें तो ये वाज़ेह हो जाता है कि उनका रवैया दीगर असनाफ के मामलात में जिस तरह सख्त था, तनकीद के मामले में भी अजीब तरीन था। तहक़ीक़ पसंदी के बाद आज़ादी तक तनकीद का कोई वाज़ेह तस्वुर सामने नहीं आता। इसके बाद 1960 से 1980 का जायज़ा लें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो दआइया, मुतज़ाद और मुखालिफ रुझानात, आपसी चरकलिश, मुसाबिक़त और मुताबिक़त, गंजलत और पेचीदा
عروج و زوال اور مقاصمانہ رویوں کی کہانی سے بھری پڑی ہے۔ اس کے علاوہ تحریکات نے بھی اردو تنقید کے سازگار ماحول پر اپنا شکنجہ کچھ اس طرح کسا کہ ساری چیزیں نظریات کی فضاؤں میں منتشر ہو کر بکھرتی چلی گئی۔ ذہنی کشمکش، عمل و رد عمل، اجتماعیت و عمومیت، بے محابہ زندگی، میکانیکیت کا فروغ، معاشیت کا دباؤ، معاشرت کا تناؤ وغیرہ کا تفاعلات ہمارے ذہنوں پر شکنجہ کس رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ تنقید تخلیق پر بھاری لگنے لگی تھی۔ بالفاظ دیگر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تخلیق کاروں پر تنقید نگاروں کی اجازت رہی تھی۔ مختلف اقسام کی تنقید کی شاخیں بھی وجود میں آ چکی تھی، جیسے تقابلی تنقید، سائنٹفک تنقید، اساسی تنقید، ساختیاتی، تاثراتی، نظریاتی، مارکسی، جمالیاتی وغیرہ جیسے تنقید ٹرمز کے سہارے ادب کا جائزہ لینے کی کوششیں کی گئی تھی۔ یہاں پر بہت سارے وہ نام ہیں، میں اس سے یہ گریز کرتے ہوئے جو چند ساختیاتی تنقید وغیرہ کے جو نام ہیں، اس کے ان ناقدین کا انداز سے تنقید مختلف اور اس کی متعدد جہتیں تھی۔ اسی اعتبار سے اسلوب تنقید کے بھی ہزار رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا یہ منفی پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اس طرح کی تنقید سے فن پارے میں پائے جانے والے، یعنی وہ الگ الگ شاخوں والی تنقید سے، اس طرح کی تنقید سے فن پارے میں پائے جانے والے تمام محاسن مائع کا احاطہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ساختیات پر بات ہوتی ہے تو صرف اور صرف ساختیاتی پہلو سامنے آتے ہیں، اور جب اسلوبیاتی تنقید ہوتی ہے تو اسلوب پر ہی بات ہوگی۔ اس طرح تنقید کا مجموعی مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ ان ناقدین نے آپس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور ادب میں نئے رجحانات پیدا کرنے کی خاطر الگ الگ ناموں سے ادب کو بانٹنے کی کوششیں کی۔ نئی نسل کے فنکاروں کے سامنے تنقید کا یہ منظرنامہ قابل تقلید نہیں تھا، اس لیے اکثر فنکار پیشروؤں کی اتباع کرنے سے کترانے لگے۔ اس کے علاوہ ان تخلیق کاروں کو خود اپنا ناقد تلاش کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کئی تخلیق کار تنقید نگاری کے میدان میں اتر آئے اور تنقید نگاری کے منظرنامے پر نظر آنے لگے، جو اپنے افکار و نظریات کو بآسانی پھیلانے کا ہنر رکھتے تھے۔ تنقید کے اس افق پر شمیم طیب، اسلم جمشید پوری، خورشید اکبر، رؤوف خیر، عبدالحساس، کلیم عازف، بیگ احساس، وہاب اشرفی، احمد صغیر، ابو ذر ہاشمی، صفدر امام قادری وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے طور پر اردو تنقیدی منظرنامے کو وسعت بخشنے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں ہر ایک کا اپنا انداز، اپنا اسلوب اور اپنا ویژن ہے، اور اسی سے مطابق اپنے نقطۂ نظر کو کامیابی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا لہجہ زیادہ واضح ہے تو کسی کا غیر واضح، لیکن اس کے باوجود اپنی گفتگو کو بغیر کسی جولودگی کے بآسانی پیش کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں چند رسائل نے اہم کردار ادا کیا۔ اسبات کے ذریعے اشعر نجمی نے حیثیت کو زندہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ رسالہ آمد کے ذریعے خورشید اکبر نے ادب کو گروہی تحریکوں سے آزادی دلانے کی بھرپور کوشش کی اور ترقی پسند تحریک کو پسند کرتے ہوئے باقی تمام رجحانات اور تحریکات کو رد کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تحریر نو میں ظہیر انصاری، جو فکشن نگار تھے، نئے تنقید نگاروں کو رد عمل کے طور پر بھرنے لگے۔ پاکستان سے اجرا کے ذریعے سلیم احسن نے ادب برائے تبدیلی کے نام سے یہ تحریک شروع کی اور اس بات پر زور دیا کہ ادب میں نئی چیزیں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس نسل کی تنقید نگاری کا جائزہ لیں تو ایک طرف ہمیں نئی تنقید میں بہت ساری مشاہدتیں اور مطابقتیں نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف واضح اختلاف اور تضاد بھی سامنے آتے ہیں۔ اس نسل نے شعوری طور پر کوشش کی کہ وہ اپنے نظریات کو غیر ضروری طور پر قاری اور فنکار پر نہ تھوپیں، بلکہ ان میں معائب و محاسن کی جانب توجہ مرکوز کریں اور ان نکات کو سامنے لائیں جو فن پارے میں موجود ہیں۔ اس طرح سے میں نے جتنے بھی نام اوپر گنائے ہیں ان کی تنقید کا مختصر سا 2-4 جملوں میں جائزہ لیا ہے، چاہے اسلم جمشید پوری ہو، شمیم طیب، خورشید اکبر، سید احمد قادری، شوکت حیات، رؤوف خیر، عبدالحساس،
اس کے علاوہ کلیم حاضر، بیگ احساس، صغیر ابراہیم، صفدر امام وغیرہ. اس کے بعد اور اس کے علاوہ ابو ذر ہاشمی جو ایک سینئر نقاد ہیں، ان کا بھی جائزہ لیا ہے. یہ تمام تنقید نگار کسی نہ کسی سطح پر ادب کی تشریح و تقریر میں لگے ہوئے ہیں. ان میں تو بعض نے اپنی تحریر کی انفرادیت اور انفرادیت کی وجہ سے اپنی حیثیت منوائی ہے اور ادب کے مخفی گوشوں کو منور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ تھوڑی دوری پر کچھ اور تنقید نگاروں کی ایک ہمت نے ایوان تنقید میں اپنے ہونے کی دستک بھی دی ہے، جن میں کوثر مظہری، ڈاکٹر مولا بخش، راشد انور، راشد حقانی القاسمی، شہاب ظفر اعظمی، جاوید ہمایوں، مشرف عالم ذوقی، پروفیسر غضنفر، ابو بکر عباد، احمد صغیر، شہزاد انجم، ڈاکٹر مشتاق احمد، ہمایوں اشرف، مشتاق سعید، ڈاکٹر محمد نسیم. ہماری ریاست میں اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر ایس ایم عقیل، ڈاکٹر آفاق علم صدیقی اور ڈاکٹر غضنفر اقبال کے ساتھ اگر مناسب سمجھے تو آخر کا نام لیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. ان تنقید نگاروں نے اپنے طور پر اردو تنقید نگاری کے فروغ میں حصہ لیا. ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک خاص انداز و اسلوب اور تحریر رہا ہے. یہ تنقید نگاروں کے تعلق سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نہیں خود کسی مخصوص فکر، تحریک یا نظریے کی پابند نہیں رہی ہے. وہ اپنے تمام تر احساسات کے ساتھ آزاد ہے اور یہی آزادی انہوں نے اپنی تحریروں کو بھی سونپی ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر ادیب کسی مخصوص نظریے یا جماعت میں اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے تو ادب میں اس کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے اور ادیب کے فکر و تخیل کی پرواز ایک مخصوص دائرے میں سمٹ کر رہ جاتی ہے. ان تنقید نگار اور اس طرح سے یہاں پر جتنے نام لیے ہیں وہ کسی جگہ شائع ہو جائے گا انشاءاللہ، اس میں دیکھ لیں گے کیونکہ طویل ہوا ہے مقالہ. وہ تمام جتنے نام میں نے وہاں پر اوپر دوسری نسل کی گنائیں ان کا بھی جائزہ لیا ہے. اس کے بعد ایک اور قابل عمل آتا ہے جو نئے قلمکار نظر نامے پر ابھرتے ہیں، جن میں ڈاکٹر افضال عاقل، ڈاکٹر سرور الہدا، ڈاکٹر نوشاد عاطر، ابو بکر رضوی، مسعود ہاشمی، محسن رضا رضوی وغیرہ زرخیز و تازہ کار بھی اس آدار راستے میں اپنے نرم و نازک پاؤں کو لعان کرنے کے لیے آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے شعوری طور پر کوشش کی ہے کہ روایت، کلاسیکیت، جدیدیت اور مواد جدیدیت کے خوبصورت امتزاج سے اپنی تنقیدی تحریرات کو معطر و منور کریں. ان میں بیشتر کا رجحان تحقیق کی طرف زیادہ ہے، لیکن ہلکی ہلکی تنقید سے بھی ان کا شغف خاص رہا ہے. یہ نوجوان مدلل گفتگو کرنے کا ہنر جانتے ہیں، بغیر کسی پیچیدگی کے یہ براہ راست گفتگو کرتے ہیں اور سیدھے سادے انداز میں اپنی باتیں پیش کرتے ہیں. بیشتر جگہوں میں یہ معروضی انداز اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی تحریروں کی امتزاجی کیفیت، تجزیاتی مطالعہ، سوچ کا ویژن، پرکھنے کا آلہ، قلبی دیانتداری، وقیع النظری اور تنقیدی بصیرت کو دیکھتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کی ضمانت دی جا سکتی ہے. اس طرح ہمارے تنقید کا بدلتا ہوا ایک واضح منظرنامہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس میں تنقید نگاری کو فروغ حاصل ہو رہا ہے اور نئے نقادوں کا ایک قافلہ دکھائی دیتا ہے. اس میں جہاں ایک طرف نئی تنقید اپنے اندر کئی خوبیاں رکھتی ہے تو اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس نے اکثر صحیح بیان تلاش کرنے کی بجائے کام چلاؤ بیان پر اکتفا کیا ہے. فن پارے کے تجزیے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ تجزیاتی کم، غیر تجزیاتی زیادہ ہو جاتا ہے. آج کل کی تنقیدی تحریروں کے مطالعے سے ایک طرح کی یکسانیت کا احساس ہونے لگتا ہے. ہر ادیب اور ہر تخلیق کے سلسلے میں ایک سی باتیں کہی جاتی ہیں. آج ہر فنکار اپنی تعریف اور اپنا قصیدہ سننے کا خواہاں نظر آتا ہے اور پہلی فرصت میں اسٹیبلش ہو جانا چاہتا ہے. تنقید نگار بھی ان کی اس خواہش کا احترام کرتے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ ادب میں اسپیشلائزیشن کا سسٹم آ گیا ہے. کوئی فکشن میں اپنی مہارت دکھاتا ہے تو کوئی شاعری میں اپنے جوہر دکھاتا ہے.
फिर भी नए नाक़िदीन की कोशिशें पिछली नस्ल के नक़ादों के बनिस्बत अच्छी खराब दे सकते हैं, ये अपनी रिवायत को बरकरार रखे हुए खराब दी जा सकती है। नई तनकीद हालांकि अपने मनसब में पूरे तौर पर कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन मजमूई तौर पर इसके ज़ेर असर जो तनकीदी तकलीफ सामने आई उसे एतबार हासिल हुआ और लम्हे आज़ादी की जानिब इसके गामज़न होने का वाज़ेह इशारा भी साबित हुई। और आखिर में ये जैसा कि मैंने अपने मज़मून के आगाज़ में कहा था, 20वीं सदी में कई तहरीकात आई, रुझानात आए, चले गए। 20वीं सदी अपने तमाम तर जलवे दिखाकर चली गई। अब माबाद जदीदियत का भी मामला नहीं रहा। तो आज का दौर, इस दौर को हम किस दौर से या किस तहरीक से वाबस्ता कर सकते हैं? तहरीक तो नहीं, लेकिन आज के दौर को हम नारंगियों, फारूकियों, उस्मानियों और हनफियों का दौर कह सकते हैं। आज के इस दौर को हम बिला शक व शुबा नारंगियों, फारूकियों, उस्मानियों और हनफियों का दौर कह सकते हैं। आज एक तरफ बहुत से फनकार नारंगियों, फारूकियों, नाम है बाकायदा तौर पर नारंगियों गोपीचंद नारंगी, नारंगी, फारूकियों में शमसुर रहमान फारूकी, जुबैर फारूकी वगैरह 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 हैं। हनफियों में मुजफ्फर हनफी, शफीक हनफी, शलीम हनफी, अमीर हनफी और उसके अलावा उस्मानियों में शमसुल हक उस्मानी, अंजुम उस्मानी वगैरह वगैरह। ये उस्मानियों, फारूकियों और हनफियों, नारंगियों, आज एक तरफ बहुत से फनकार नारंगियों, फारूकियों, उस्मानियों और हनफियों के परस्तार हैं और उन ग्रोहों से जुड़कर रहने में आफियत समझते हैं। और उनका अकीदा है कि तनकीद में ही नहीं बल्कि तख्लीकी व तहकीकी मैदान में भी अगर मुकाम हासिल करना है तो किसी ना किसी ग्रोह से ताल्लुक़ रखना और जुड़कर रहना नागुज़ीर है, वरना पूछने वाला कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ बीच तर कम कर उन ग्रोहों से बेजारी और इस रविश पर गामज़न है कि किसी ना किसी तरह अदब को नारंगियों, फारूकियों, उस्मानियों और हनफियों और उनके ग्रोहों से आज़ादी दिलाई जाए ताकि एक साज़गार माहौल पैदा हो जाए और अदब पर किसी की इजाज़त बाकी ना रहे। खुदा हाफ़िज़। सवाल मेरा भी है। पहला सवाल ये है कि आपने कई नाम जो लिए नए तनकीद निगारों के और ये कहा कि शुरू से जो तनकीदें हमारे पास रही हैं, दबिस्तान हमारे पास रहे हैं, तहरीकें हमारे पास रही हैं, उसके नतीजे में जो जिस किस्म की तनकीद की गई है उन सब को मिलाकर एक नया जो है तनकीदी उस्लूब या तनकीदी रवैया उन्होंने इख्तियार किया है। तो वो क्या स्टाइल है, वो कैसी तनकीद है, उसका कुछ नमूने उसके आपने क्या अपने मकाले में वो पेश किए हैं? और फिर कैसे हम मान लें कि बेग एहसास हो या सफदर इमाम हुसैन हो या कोई भी हो, उन्होंने जो है वो रूमानी अंदाज को भी उसमें समेट लिया है, या जो है जदीदियत, तरक्की पसंदी, माबाद जदीदियत के दौर में जो तनकीदें रही हैं वो सब उसका एक मजमुआ या उसका एक नया रूप हमारे सामने आया है। हम कैसे मान लेंगे? कोई भी कैसे मानेंगे? एक सवाल पहला सवाल नहीं, एक और सवाल है। एक और सवाल यह है कि जितने नखादों पर हमारे तनकीद निगारों की तनकीद को अब आपका कहने का यह मतलब है कि ये जो नए तनकीद निगार सामने आए हैं, ये जो मंजरनामा बदला है, तो इन तनकीद निगारों से हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर हमारे अदब के असातिज़ा, हमारे अदब के तलबा, रिसर्च स्कॉलर्स उनको वो मुकाम जो है दें जो मुकाम हमने हमारे पिछले जो है नखादों को दिया है? क्या वो इस तरह का मुकाम व मर्तबा बनाने की सलाहियत या इस तरह की तनकीदें उनकी हैं? ये इसके बारे में आप कुछ अपना ख्याल हमारे अंदर बुर्दापरस्ती आम हो गई है, इसका उनका पहले जवाब नहीं, जिंदगी में किसी की पजीराई नहीं होती, ये सब जानते हैं।
मुमकिन है आने वाली नस्ल इससे अच्छी हो और आज जो ये जितने भी फनकार उभरे हैं उनकी उनसे ज़्यादा पजीराई हो सकता है। वो सब ठीक है। वो तज्जिया वाले सवाल का जवाब क्या है आपका? तज्जिया हवाले के तौर पर, हवाले के तौर पर चलिए, हम जितने भी नाम लिए हैं हम सब उनसे वाकिफ हैं जी। उन्होंने नए तख्लीक़कारों पर, चाहे इलाकाई हो या पूरे उर्दू के पस मंज़र में, पूरे नेशनल कौमी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर, उन्होंने कुछ किताबों का या किसी की शायरी का या किसी के जो है अफसाने के अदब का, किसी का, उसी के रोशनी में मैंने जायजा लिया है। एक मकाले में ये बहुत वसी मौजू है। मकाला नहीं, ये आपका जो मकाला था उसमें मिसालें के ताल्लुक से मैं कह रहा हूँ, मकाले में मैंने ये बात जुमले मैंने लिखे इन तनकीद निगारों के ताल्लुक से भी मैंने वाज़ेह किया आखिर में कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आज की तनकीद में क्या क्या कमियाँ बाकी रह गई है, उसका बहुत भरपूर जायजा मैंने लिया है। शायद आपने नहीं सुना वो पैराग्राफ, हमारे सुना है, वो मिसालें पेश तहरीरों से एक तरह की एकसानियत। मेरा सवाल ये है कि मिसालें आपने एक पेश मकाले में 20 नाम यहाँ पर आए हैं। नाम नहीं जनाब, किसी की तहरीर या तख्लीक को लेकर फलां साहब ने जो इस पर तनकीद की है, इसमें वो सारी चीजें हमको मिल जाती हैं जो रुमानी तनकीद निगारों के पास है, जो तरक्की पसंद तनकीद निगारों के पास है, जो जदीद हमारे असलाफ है, वही हमारा असासा है। फारूकी साहब की तनकीद हो या कोई आला मसरूर की हो, एहतशाम हुसैन सिद्दीकी हो, हमारे पेश रो हैं, हमारे असलाफ हैं, वो तो हमारे लिए ज़रूरी है। उनको उनका मुताला करके ही आज का हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उन तनकीदों को पढ़कर, उन दबिस्तानों को पढ़कर, वो सब उससे आकर ही हम यहाँ तक पहुँचे। वही कह रहा हूँ ना। अब ये नतीजा जो हमारा कायम हो रहा है, ये वही हमारे असलाफ है, इसके वही आने हमारे का असासा नतीजा है कि हम अब उनसे बेजार हैं या उनको अपना रहे हैं। उनसे ये है मंजर मुझे कुछ चीज़ों में शिद्दत नजर आई। मैं समझता हूँ कि ये शिद्दत की बात हमारे यहाँ वाज़ेह कर दूँ। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, यहाँ जितने प्रोफेसर हजरात, मैं तो बच्चा हूँ, तिफले मकतब है, तिफले मकतब हूँ, जिन आपका आना जाना पूरे मुल्क में रहता है। नई नस्ल के नाम लिया हूँ, उनसे किसी कभी भी बात करनी थी, मैक्सिमम उसमें बात शुराई तो मोहम्मद जदीदियत वगैरह से जुड़े हुए आज में ही रौफ है हमारे तहरीक का साथ देते बेग एहसास तो नारायण साहब से गहरा रिश्ता। इनकी कितनी तनकीदी किताबें मंजर आम पर आई हैं, ये भी बताइए। अब यहाँ तनकीदी किताबें बाकायदा हर एक चार ज्यादा लोगों ने तख्लीक कान के हैसियत से अपनी शनाख्त बनाई है उर्दू अदब में। जिनकी साहब को नखात मानने वाले यहाँ बताइए जनाब, उर्दू के सब लोग, कई लोग बैठे तशरीफ फरमाए हैं। मेरा मानना ये है कि आप जो है जितने नए नाम नाफिदीन के गिनवाए हैं, मैं आपको उन सबसे बड़ा नाफिद तस्लीम करता हूँ। सुनिए, मेरी बातें सुनिए। उन सबसे आपको बड़ा नाफिद तस्लीम करता हूँ। आपका नजरिया तनकीद क्या है, ये आप बताइए। मैं आपके ऊपर वाज़ेह कर दिया। थियरी को लेकर जब हम तनकीद करने बैठते हैं तो सिर्फ एक पहलू हमारे पेश नज़र रहता है, बाकी पहलू नज़रअंदाज हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्या मुमकिन है कि किसी थियरी के बगैर भी तनकीद की जा सकती? इधर इदारों के हवाले से आइए जनाब अब्दुल नासर मुखाला पेश कीजिए। मेरा मकाला है उर्दू का बदलता मंजरनामा कर्नाटक में उर्दू के तालीमी व दीगर इदारों के हवाले से। हिंदुस्तान एक वसी व अरीब मुल्क है जहाँ लाख तादाद में आबाद हैं और कई जबानें बोली और समझी जाती हैं। जबानों में उर्दू का भी शुमार होता है। हिंदुस्तान की बेशतर जबानें किसी न किसी इलाके से मंसूब हैं, लेकिन उर्दू एक ऐसी वाहिद जबान है जिसका ताल्लुक न किसी कौम से है और न किसी एक इलाके से। ये बड़े सभी के कसीर तबके की जहीदी और दिल अजीज जबान है। ये जबान गंगा जमुनी तहजीब की अलामत है। इस जबान को परवान बढ़ाने में हर हिंदुस्तानी या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का बराबर का हिस्सा रहा है। एक गुजारिश है जी सर, तमहीद छोड़ जी सर, दीजिए और सिर्फ इदारों की तरफ से। ठीक है सर, ठीक है जी। मैं मौके से पहले हाँ, आप तफसीर में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तमहीद की जरूरत है। बराह रास्त आप आइए। आज़ादी से कबल उर्दू बिना तहरीक मजहब व मिलत के हर हिंदुस्तानी की जबान थी। हिंदी के साथ इसका रिश्ता सगी बहन जैसा था।
आजादी के बाद उर्दू के लिए संविधान पर इख्तियार कर गया है। इस जबान को लफ्ज सियासतदानों ने मुसलमानों की जबान करार दे दिया। अब आइए आजादी के बाद रियासत कर्नाटक में उर्दू की सूरत हाल क्या है देखेंगे। आजादी से कबल रियासत कर्नाटक में भी कमों पेश वही सूरत हाल थी जो सारे हिंदुस्तान में थी। आजादी से कम होता है कि बहुने दौर से कर्नाटक की बीसर जिला मसलन बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, रायचूर, सिरा, तुमकुर, बेंगलुरु और मैसूर वगैरह उर्दू के गढ़ माने जाते थे। इन शहरों में मुशायरे होते और कवालियों का भी एहतमाम होता था। लोग जो इन मुश्किलों में शरीक होते चूंकि दौर उर्दू का बोलबाला था और गाँव में उर्दू के बड़ी तादाद में सरकारी और गैर सरकारी तालीम और तदरीस के इदारे मौजूद थे। कन्नड़ स्कूलों की तादाद उर्दू के बनिस्बत कम थी। जब कन्नड़ के तलबा अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना चाहते तो उन्हें दूर दराज के गाँव जाना पड़ता था। इसलिए सहूलत की बिना पर उर्दू स्कूलों का रुख करते। वजाहत के लिए सिर्फ एक मिसाल आपकी गुज़र करूंगा। जिले कुंगुर के एक छोटे से दरिया का बैरप्पा नामी लड़के ने उर्दू स्कूल से तालीम हासिल की थी। अब तक सबको जवाब के किसी गाँव में 11वीं शरीफ या 12वीं शरीफ की फातिहा खानी होती तो वो नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बड़ी अकीदत से इन मशकिलों में शरीक होता और जुनानु सीरत बड़ी खूबसूरत आवाज में पढ़कर सुनाता। उन दिनों जुनानु सीरत से लोगों को बड़ी अकीदत थी और ये किताब हर घर में मौजूद रहती थी। शादियों में लोग अपनी बेटियों को पुरानी मस्जिद के साथ जुनानु सीरत दिया करते थे। इस देहात में और खरब जवाब में बैरप्पा जी से और कई हिंदू मौजूद थे जो उर्दू से बात करते थे। जब भी हुकूमतें बदलती हैं तो हुकूमतों की पॉलिसियों को मुस्तरद करके उनकी जगह नई पॉलिसियों को लागू करती हैं। आजादी के बाद हिंदुस्तान में भी मुल्की और रियासती सतह पर हर शोबे हयात में तब्दीली आई है। हिंदुस्तानी सरकार ने अंग्रेजों की पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया और जमा और मकान के लिहाज से खातर का तब्दीलियां अमल में आई। उस वक्त हुकूमत हिंद को कई मसाइल तशवीश थे। उनमें पहले शरीयत पहले तक के हिसाब का मसला भी शामिल है। इस काम को अंजाम देने के लिए मरकजी सरकार ने कमेटी तश्कील की। इस कमेटी में शामिल तंग नजर सियासी रहनुमाओं और फिरका वाराना नजरिया रखने वाले सरकारी हुकाम ने लिसानी पॉलिसी तरतीब देते वक्त उर्दू के तय गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया, जिसकी वजह से उर्दू के फरोग को काफी नुकसान होता है। मरदमशुमारी के नासुर से देखा जाए तो कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 18-19% है और उर्दू मीडियम के स्कूल जरा तफसील में है जो मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, जिसका तनासुब 8.79% है। उर्दू मीडियम के स्कूल प्राइमरी सतह में जिनका तनासुब 8.79% है और अपर प्राइमरी सतह में 6.7% है और सेकेंडरी सतह पर 3.41% है। इस तरह तनासुब के लिहाज से 6.74% है। मरदमशुमारी के 2011-12 की मरदमशुमारी में उर्दू जरिए तालीम में दाखिला लेने वाले प्रभाव तादाद की तादाद भी यहाँ दिखाई गई है, जिसका तनासुब 6.27% है। अपर प्राइमरी सतह में जिसका तनासुब 5.42% है और सेकेंडरी सतह में 3.25% बनता है। इस तरह इससे साफ जाहिर होता है कि उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने वालों की तादाद 6.27 से घटकर 3.25 हो गई है। इसी तरह मैंने और भी पूरे वो चार्ट दिया है। तो इसके अलावा ये तो सहनसानी फार्मूले से उर्दू जबान को नुकसान पहुंचा, उसके अलावा उर्दू को कई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। उनमें अंग्रेजी मीडियम सेलेक्ट है। चूंकि अंग्रेजी
जबान आलमी सतह पर राय होने की वजह से लोग उसी की जानिब राग़िब होते नहीं। अभी हमने देखा कि प्राइमरी सतह में उर्दू मीडियम के तलबा की तादाद 6.7 थी और सेकेंडरी जो बढ़ने तक 3.25% हो गई। इसे साफ जाहिर है कि उर्दू मीडियम के तलबा ऊंची जमातों में, अंग्रेजी मीडियम में या कन्नड़ मीडियम में के स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं या ड्रॉप आउट हो जाते हैं। आम लोगों का ये ख्याल है कि अपने बच्चों को अंग्रेजी जबान में तालीम दिलवाने से उन्हें मुलाजिमत व आसर मिल जाएगी। इलावा इस ख्याल के उर्दू की ज़बानी के लिए जहाँ असातिज़ा की कोताही शामिल है वहाँ वालिदैन की लापरवाही भी दिखाई देती है। वालिदैन लापरवाही इसलिए होते हैं कि सरकारी स्कूल में मोटी मोटी फीस का बोझ नहीं पड़ता और वो सरकारी स्कूल खैरात होते हैं जहाँ पढ़ाई मुफ्त में होती है। जब असातिज़ा और माँ बाप दोनों गैर जिम्मेदार कर रहे हैं और बच्चों की खबर भी नहीं लेते तो बच्चे जो इल्म की कदर कीमत ना वाकिफ हैं वो भी अपना कीमत वक्त खेल में गुजार देते हैं। स्कूलों की इस हालत को देखते हुए बड़ी तशवीश होती है कि आज इस जबान का क्या हाल होगा। इस तरह उर्दू दिन ब दिन तालीमी सतह पर जबान आमदा नजर आती है और फिर सेकेंडरी के बाद कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ता है। तलबा की तादाद कॉलेजों में पहुंचने तक 1 या 1.5% हो जाती है और फिर यूनिवर्सिटी में पहुंचने तक 0.01% होती है। कॉलेजों में दीगर सब्जेक्ट्स के साथ किसी एक जबान को सेलेक्ट करना पड़ता है। इसलिए उर्दू के तलबा उर्दू बहैसियत एक जबान को सेलेक्ट करते नहीं, लेकिन दिलो जान से पढ़ाई करने से गुरेज करते हैं। हालांकि मामला उर्दू के साथ ही नहीं, दीगर जबानों के तलबा का भी यही हाल है। अभी तक हमने उर्दू जबान की हालत और उसके ज़रूर रसाम मजलूम और रोशनी डाली, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि उर्दू जबान अदब की बहार और तरक्की व तरवीज में किस किस ने हिस्सा लिया, हुकूमत कर्नाटक का उसके लिए क्या रवैया रहा और आइंदा दिनों में उसका मुस्तकबिल क्या होगा। उर्दू की बहार और तरक्की व तरवीज में अरबी मदारिस का बड़ा अहम रोल रहा है। आज़ादी से कबल रियासत कर्नाटक में अरबी मदरसों की तादाद नहीं के बराबर थी। आज़ादी के बाद रियासत में कई अरबी मदरसे कायम हुए। इन मदरसों में अरबी के अलावा उर्दू की तालीम होती रही। बीसर मदरसों में आजकल मजहबी तालीम के अलावा असली तालीम का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। इससे मजहबी तालीम के हुसूल के साथ साथ रोटी रोजी का मसला भी हल होता दिखाई देता है। यह अदारे शहर हिंदू में बड़ी कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर कई अदारे हैं, ये दो के नाम मैं दे रहा हूँ, मसंदा दारुल उलूम समीउल इरशाद, जामिउल उलूम, मदरसे ज़ैनब वगैरह वगैरह। गुजरात कमेटी की सिफारिश पर रियासत की सरकार ने उर्दू अकेडमी कायम की। उर्दू अकेडमी एक फ़आल अकेडमी है और कई प्रोग्राम करवाए हैं, मसलन मुशायरे, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह। इसके अलावा उर्दू अदीबों और शायरों की तहक़ीक़ात मंजर आम पर भी लाई जाती है। उर्दू के शुरा को माली इमदाद दी जाती है। अकेडमी उर्दू जबान और अदब के वक़ा में एक नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। उर्दू की मशहूर अदीबा डॉक्टर आमिना खातून साहबा की अंतर कोशिशों से हुकूमत कर्नाटक ने 1974 में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू का क़याम अमल में लाया। शोबे से कई तलबा और तालिबात तस्वीर होकर आज ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फायज हुई। यूनिवर्सिटी के अलावा शहर के 20 कॉलेजों में उर्दू शोबे कायम पहले से कायम थे, इनमें और इजाफा हुआ। उर्दू के तलबा और तालिबात को अपनी तालीम जारी रखने में आसानी पैदा होगी। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में सिर्फ दर्स और तदरीस का इंतजाम नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, मुशायरे वगैरह भी करवाए जाते हैं। असातिज़ा की तरबियत के लिए यूनिवर्सिटियों में रिफ्रेशर कोर्स मुनक़्क़द किए जाते हैं। यूनिवर्सिटियों में रेगुलर कोर्सेज के अलावा उर्दू में करस्पॉन्डेंस कोर्स भी जारी किया गया। दूर दराज शहरों के तलबा करस्पॉन्डेंस कोर्स के जरिए उर्दू में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कराए गए। कर्नाटक हुकूमत ने 1990 के आसपास
दूरदर्शन से उर्दू न्यूज सर्विस शुरू की। उर्दू दुश्मनों ने उसकी मुखालिफत में जगह जगह मुजाहिरे किए और मुजाहिरे फसाद की शक्ल में खुल पड़े। लूटमार शुरू हो गया। खासकर शहर बिंदुल में मुसलमानों की कई बसें और जायदादें नजर आतिश कर दी गई। करोड़ों का रुपये का नुकसान हुआ। आखिरकार हुकूमत को इन दरिंदों के सामने झुकना पड़ा और इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। हुकूमत ने कर्नाटक में निसाब की 10 किताबों की इशाअत के लिए शहर मैसूर में DSR-ERT कायम किया। ये अदारा वक्त पर 10 किताबें फराहम कर देता है। इस लिहाज से तलबा और तलबात बड़ी सहूलत थी। रियासती सरकार ने सारी रियासत में दीगर जबानों के साथ उर्दू में भी आंगनबाड़ी मदरसे कायम किए, जिससे कम उम्र से ही बच्चों को स्कूल जाने की आदत बढ़ जाती है। रियासत में खासकर शहर बिंदुल में कई अखबार जारी हुए। उर्दू जबान अदब की तरक्की में इन अखबार का बड़ा अहम रोल रहा है। उर्दू अखबार के जरिए रोज बरोज की खबरों के अलावा हर शोबे हयात पर रखे गए मज़ामीन भी शामिल होते हैं। ये दौर में उर्दू किताबों की इशाअत के लिए लोगों को एक मुद्दत तक इंतजार करना पड़ता था ताकि वो जो घरों के शक्कर काटे पड़ते थे। जरूरत के पेश नजर मुमताज़ उर्दू ने जिनमें डॉक्टर फहमीदा बेगम साहबा का इसमें इनाम काबिल जिक्र है जद्दोजहद करके शहर बिंदुल में तरक्की उर्दू ब्यूरो के मातहत कैलिग्राफी सेंटर कायम किया, जहाँ पर खता की कोर्स की तरबियत दी जाती थी और सैकड़ों लोग इस कोर्स से मुस्तफीज हुए। किताबों के साथ अखबार की इशाअत का काम भी आसान हो गया। शहर हैदराबाद में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वजूद में आई तो इसका एक रीजनल सेंटर बिंदुल में भी कायम हुआ। इस सेंटर के क़याम से उर्दू के तलबा और तालिबात को अपनी पढ़ाई जारी रखने में आसानी पैदा हुई और इसका भरपूर फायदा उठाया गया। अभी तक इस सेंटर से हज़ारों तलबा और तालिबात फारिग हो चुके हैं और बसरे रोजगार हैं। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के जरिए इंजीनियरिंग और दीगर टेक्निकल कोर्सेज भी शुरू किए गए। मुहिबान उर्दू ने रियासत में कई मिली व अदबी अंजुमनें कायम की, जिनके ज़ेर निगरानी मुशायरे, सेमिनार और ड्रामों वगैरह का भी इंतजाम होने लगा। ये अंजुमनें होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए स्कॉलरशिप और इनामात का भी एहतमाम करते हैं। इस तरह उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का भी इंतजाम हो जाता है। इन कमेटियों के काबिल कदर शुमार हैं कि जब भी कोई सूरत मुसीबत उर्दू पर आन पड़ती है तो सबसे पहले ये अंजुमनें आवाज़ उठाती हैं और उर्दू की तरक्की के लिए कमरबस्ता हो जाती है। उर्दू जबान में अदब और उर्दू स्कूलों की बकाया की खातिर कई अंजुमनें और मुहैयर हजरात उर्दू स्कूलों को गोद ले रहे हैं और अपने सफ़े खास से इन स्कूलों को बड़ी खुशबू से चला रहे हैं। आजकल इंटरनेट इस्लाम तफसीर का बड़ा कारगर और मौसर जरिया है। इसकी मदद से दुनिया की खबरें और दीगर मालूमात बड़ी आसानी से घर बैठे हासिल की जा सकती हैं। जो किताबें बाजार में दस्तयाब नहीं वो इंटरनेट पर मिल जाती हैं। इंटरनेट में रीड का नाम एक वेबसाइट है जो उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, जिसके करता धरता संजीव सरफ नामी एक बहुत बड़े काबिल हैं। उन्होंने इस वेबसाइट में सैकड़ों किताबें, हजारों अशआर और दर्जनों मुशायरे वगैरह अपलोड किए हैं। कर्नाटक में इसका रिवाज बहुत कम है, अगर है भी तो नहीं भी बराबर। कर्नाटक के उर्दू अदब के खैर खामों को चाहिए कि वो भी इस वेबसाइट को नमूना बनाकर उर्दू की तहरीकात और अशआर और उर्दू के ज़िमन में होने वाले प्रोग्रामों को अपलोड करें। इसी इंटरनेट की बदौलत उर्दू का दामन दिन ब दिन वसी होता जा रहा है। इस मुख्तसर से जायज़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उर्दू को प्राइमरी सतह से ही नुकसान होना शुरू हो गया है। इसके जिम्मेदार असातिज़ा, वालिदैन और उर्दू के तलबा हैं। इस तरह उर्दू गैरों से बढ़कर अपनों ने नुकसान पहुंचाया है। बेहतरी इसी में है कि इसी बात को लेकर अफसोस करने और इसका इल्ज़ाम दूसरे पर डालने की बजाय इसका तदारुक करें और उर्दू की फलाह व बहबूदी के लिए ज़बानी जमा व खर्च, नामनमूद, खुशगर्जी और आपसी हौसला को बालाए ताक़त पर रखकर ये प्लेटफार्म पर जमा हो और उर्दू स्कूलों की सुधार के लिए मंसूबे बनाएं। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हो सका तो उर्दू स्कूलों को गोद लें या फिर दोस्त अहबाब मिलकर एक कमेटी की शक्ल में इज्तिमाई कोशिश करें। इसका हो गया। इस कार्य के लिए
मैं खासकर कर्नाटक उर्दू अकेडमी की तवज्जो चाहूँगा। इस कार्यक्रम के लिए कर्नाटक उर्दू अकेडमी भी अंजाम दे सकती है। चूंकि अकेडमी में जनाब अजीजुल्लाह बेग और अकेडमी के जो अकेडमी के चेयरमैन हैं उर्दू के ख्याल में काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। उनके साथ मेरे उस्ताद मोहम्मद प्रोफेसर मीनू सही साहब भी हैं। ये दोनों काबिल हजरात की नुमाइंदगी में शहर बेंगलुरु के व दीगर अंजुमनों के जिम्मेदारों को मदद किया है और उर्दू की तरक्की व तजवीज़ के मुताबिक एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द करें और हो सका तो इन हजारों में उर्दू को बहैसियत एक सब्जेक्ट पढ़ाने की तरफ जोर दिया जाए। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि उर्दू के लिए हमें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरा दामे दरमे खदमे सुखने इसकी तरफ हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि वो फिर से अपना मुकाम हासिल करते रहेगी। जरा मुंहों पर ये मिट्टी बड़ी जरूरी है। खुदा आज के मुखालत पर इल्मी और तनकीदी जायजा लेने के लिए हमारे सदर मोहतरम मीर सईद साहब को डायस पर तशरीफ लाने की दावत देती हूँ। दोस्तों और अजीजों, मैं इस वक्त रस्मी खिताब से मेहमानों की तरफ इशारा किए बगैर अपनी बात पेश करना चाहता हूँ माज़रत के साथ कि वक्त बहुत कम है। और मुझे खुशी है कि इस बहुत ही अहम सेमिनार में इस सेशन की सदारत का भार मुझ पर डाला गया। हालांकि मैं इसका अहल नहीं, यह आपका हुस्न ज़न है और आपके मोहब्बतें हैं जिसका मैं दिल से शुक्रगुज़ार। मेरी खुशबख्ती ये भी है कि इस इजलास में जो मकाले पेश किए गए वो अपनी वक़्त के ज़ाविये नज़र से, मौज़ू के ज़ाविये नज़र से और फिक्र के ज़ाविये नज़र से बहुत ही वफ़ी मुकाले थे। मैं यकीनन उन पर अपने तासुरात का इज़हार करूँगा। इससे पहले एक माज़रत ही कह लीजिए वो करना चाहता हूँ। मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं ये कहूँ कि ये मकाला एक से एक बड़ा ज़बरदस्त मकाला था और मैं आपको इन मकालों के लिखने पर मुबारकबाद देता हूँ। और ये मुबारकबाद देकर मैं आपके दिलों में भी खैर सी गाली पैदा करूँगा और ख़ुद भी किसी खतरे से महफूज हो जाऊँगा। लेकिन इंसाफ का तकाज़ा ये है कि हम सब यहाँ पर एक ख़ास ज़हनी उलियत के हामिल हैं और मैं नहीं समझता कि जो मकाला निगारों ने मकाले पेश किए हैं वो स्कूल के बच्चों की तरह किसी हौसला अफजाई के होस्टर। हम एक ज़हनी बहुत बुलंद न सही एक ख़ास ज़हनी सतह पर यहाँ शरीक हैं, शामिल हैं और हमें तवक्को करते हैं कि उस ज़हनी सतह की बातें हों तो सबके लिए भी काबिल कबूल होंगे। और शायद सेमिनारों का जो हासिल होता है वो ये कि हम इस्तिफ़ादा करते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ सीखे हुए लोग भी जब सेमिनार में आते हैं उनको कुछ ना कुछ नए कोशिश हासिल करने पड़ते हैं। ये हम सब करते हैं। मैं सदर की कुर्सी पर बैठा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरा अल्लामा बन गया हूँ। मैं भी वहाँ तालिब इल्म के हिस्से से बैठता हूँ ताकि वो सीख सकूँ और यही सच्चाई होनी चाहिए। तो मैं ये करना चाहूँगा कि आज जो चार मकाले पेश किए गए उनमें सबसे पहला मकाला तो महमूद शाहिद साहब का था और थोड़ा सा उनके उन्वान के ताल्लुक से थोड़ी बहुत गलत फहमी हो गई कि उन्होंने उर्दू अफसाने से कहा तो अफसाने अदब उनका। तो चलिए इस नुक्ते नज़र से
افسانوی ادب میں انسان کی بازیافت کا کیا عمل ہے، یا کس صورت میں انسان کی بازیافت ہوئی ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے بحث کی، اور داستان سے لے کر عہد حاضر کے افسانے تک کا انہوں نے جائزہ لیا. لیکن ایک تشنگی بات کی ہے. میں نے ان سے جب وہ اپنا مقالہ ختم کر کے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بات آپ نے جہاں چھوڑی ہے وہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی. یعنی اگر آپ ہمیں یہ بتاتے کہ عہد حاضر کے افسانے میں انسان کی بازیافت کا عمل کیسے ہو رہا ہے، افسانوں کے حوالے دیتے یا کسی افسانے نگار کا ذکر کرتے، یا ہو سکتا ہے کہ کسی مخصوص افسانوں میں انسان کی بازیافتی کو موضوع بنا کر میں اپنے ہی افسانے کا ذکر کر سکتا تھا. کرنا چاہتا یہی نہیں ہو گیا، وہ چیز تو جانے دیجیے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے عنوان سے ہمارے دل میں بہت سی توقعات جان بھی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں نظر رکھیں گا. یقیناً موقع ملتے رہیں گے، اور جب بھی آپ ایسا کریں مجھے دعوت ضرور دیجیے، میں استفادے کے لیے حاضر ہوں. دوسرا مقالہ خزانہ فرق کا ہے، اور میں اس سے پہلے ہی ان کے مقالے پر کچھ کہوں، میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں خزانہ فرق کے مداحوں میں شامل ہوں. میں نے کہیں لکھا ہے کہ نئے لکھنے والوں کی تحریر میں جب دیکھتا ہوں تو بس ایک سرسری نظر سے کہ شروع کے کچھ جملے پڑھیے، پھر جب کر کے دو چار جملے اور اختتام پر پہنچ گیا اور اندازہ لگا لیا کہ بھائی اس نے کیا لکھا ہے، کیا لکھ سکتا ہے. لیکن فضالہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ان کا پہلا جملہ پڑھتا ہوں تو مجھے آخر تک تمام پورا مضمون پڑھتا ہوں، لطف لیتا ہوں. وہ ہمارے عہد کی بہت اعلیٰ پائے کی لکھنے والی ہیں، اور انہوں نے کرناٹک میں اردو مزاح کو ایک نئی بلندی پر پہنچا ہے. ان سے بھی ہماری یہی توقعات تھیں کہ وہ طنز و مزاح کے بدلتے ہوئے منظرنامے کا جائزہ دیں. لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی آپ کا مقالہ سن کر کہ اس میں مزاح نگاری کی تاریخ آپ نے بیان کی. آخر اوت منچ پر سودا سے لے کر سارے نام آپ نے لے لیے، اور آپ کے کثرت نفسی کا یہ تقاضا تھا کہ آپ اپنا نام لے لیتی، وہ اپنے نام نہیں لیا، میں نے شامل کر دیا، آپ کا نام اس میں شامل کر دیا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عہد حاضر کے طنز و مزاح کے منظرنامے میں وہ کون سے نام ہیں جو ہمیں متوجہ کرتے ہیں؟ مصطفیٰ حسین کا تو بھی گزر گیا. بہت سارے جو اس وقت دکھ رہے ہیں مزاح بہت پرانی پیڑھی کے لوگ ہو گئے، اور ان کا مزاح ہم اس سے اس طرح زیادہ مانوس ہو گئے ہیں کہ ہم شاید ان کا مزاح پڑھتے ہوئے ہم شاید اپنے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے وہ کیا لکھنے والے ہیں، سب ہم جانتے ہیں. تو یہی صورت ہے. آپ نے دو چار نام لیے، نصرت ظہیر، پھر روف کشتر کا، اور کلمہ فردوس کا نام آپ نے لیا. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر آپ ان کے فن کے کیا خطوط ہیں، کیا ان کی امتیازات ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں جو انہیں عہد حاضر کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں ان کو ایک مقام دینے کے حامل ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اس میں آپ اپنا نام بھی شامل رکھیے. جیسے نصرت ظہیر خاص طور پر، اور یونس بٹ جو مشتاق احمد یوسفی سے بے حد متاثر ہے، تقریباً انہی کے انداز میں وہ مزاح لکھ رہے ہیں. اور وہ کشتر کی ابتدائی تحریریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قابل اعتنا نہیں تھی، لیکن آج کل وہ جو لکھ رہے ہیں اس میں بہت گہرائی کا رنگ آ گیا ہے. یہ سیمینار تھا ہی اس لیے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ہم جس عہد میں جی رہے ہیں اس عہد میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں تاریخ سے کوئی مطلب نہیں. تاریخ تو ہم اتنا پڑھ چکے ہیں کہ ازبر ہو چکی ہے. ایک ہی بات کی تکرار سنتے سنتے میں سمجھتا ہوں کہ جی اوب جاتا ہے. آپ خود جو کہ عہد حاضر کے لکھنے والے ہیں اور آپ کی نظر ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ آپ پیش کریں. اس وقت موقع نہ صحیح، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کے بارے میں، کیونکہ آپ میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑی قابلیتوں کی خاتون ہیں اور بہت اچھی لکھنے والی ہیں. نظر ہے، زبان ہے، بڑی خوبصورت زبان لکھتی ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس وقت نہ صحیح مگر مدد منظرنامے پر متاثر ضرور پیش کریں. اس سے پہلے کہ میں اگلے مقالے پر آؤں، ڈاکٹر عبدالمنان صاحب کا تذکرہ کر دینا چاہوں گا. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان تمام اداروں کا جائزہ لیا ہے جہاں
اردو کی حالت کا آپ نے جائزہ لیا ہے کہ کہاں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہاں کچھ لوگ اس کی دفاع میں، اس کی اشاعت میں، اس کی ترویج میں کام کر رہے ہیں، جیسے اردو انجمنیں ہیں، اکیڈمی ہیں. یہ لوگ جو ہے جب بھی اردو پر کچھ ہوتا ہے تو یہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. باقی کسی معاشرے میں بھی کسی زبان کا تحفظ اس وقت ہو نہیں سکتا جبکہ اجتماعی کوششیں نہ. ہم غالباً زبان کے تحفظ کے سلسلے میں، اجتماعی کوششوں کے سلسلے میں ہم بہت پیچھے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے ایک صاحب آج کل کے بیانات ہم سن رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح اردو کے تحریک کی شکل دینا چاہتے ہیں. جب تک عوام اس میں شریک نہ ہو، سڑکوں پر نہ آئیں، تب تک کسی زبان کے تحفظ کا معاملہ محض تقریروں سے، سیمیناروں سے اور بند ایئر کنڈیشن کمروں میں گفتگو سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور اس سڑکوں پر آنا کسی احتجاج کے لیے نہیں، دوسرے کو ضد دلانے کے لیے نہیں، نہ کسی کو اشتعال دلانے کے لیے ہے، بلکہ ایک اتحاد کے مظاہرے کے طور پر کہ ہم چاہتے ہیں اپنی زبان کو، محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا اظہار ہے. اس محبت کے اظہار میں ہم اجتماعی طور پر شریک نہ ہوں تو شاید ہم اس زبان کے لیے کچھ کر رہے ہوں. خیر الگ موضوع ہے، اس وقت میں اس کو اٹھاتا ہوں. تو مناب صاحب نے بڑا معلوماتی مضمون پیش کیا، مجھے بہت خوشی ہے. یہ شکایت مجھے صرف یہ ہے سیمیناروں کے ان محاوروں سے کہ ہم تمہید بڑی لمبی لکھتے ہیں. تمہید کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک عنوان ہے تو عنوان براہ راست شروع کیجیے. آپ نے غالباً ہم سب نے وہ پڑھا ہے کہ گلدستہ مضامین انشاء پردازی یہ ہمارے نصاب میں شامل کتاب رہی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ تمہید پہلے تاریخ لکھنی چاہیے، پھر تمہید لکھنی چاہیے، پھر بڑے بڑے لوگوں کے اقوال لکھنے چاہیے، پھر ان اقوال کے بعد پھر اس کا جو ہے وہ جو موضوع ہے اس کے بارے میں اخبارات میں جو کچھ آیا ہے اپنی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اخبارات میں ہے، لوگوں سے سن لیا ہے تو پھر اس کو شامل کر کے انجام بھی اس کا ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمیں مضمون نگاری کا یہی طریقہ بتایا گیا ہے اور وہ اس قدر جڑ پکڑ چکا ہے کہ ہم سیمیناروں میں مقالے پڑھتے ہیں تو از آدم تا ایدم، آدم کو گئے بغیر ہم اپنی بات دیکھ ہی نہیں سکتے. میرا خیال اس رویے میں کم از کم یونیورسٹیوں کے سیمینار تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت. آپ براہ راست اپنی بات پر آ جائیے. اس طرح صدر محترم کو، منتظمین کو بار بار کہ آپ کو یہ توجہ دلانے کی ضرورت نہیں کہ مختصر کیجیے، کم کر دیجیے، کچھ چھوڑ دیجیے، یہ سب کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. اگر آپ نے اپنی بات پیش کر رہے ہیں، دو چار صفحات میں بات آ رہی ہے، پہنچ رہی ہے، آپ کے دلوں میں اتر رہی ہے، بہت کافی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب آ رہا ہوں ہمارے داؤد محسن کے مضمون کی طرف. اچھی خاصی گفتگو ہوگی ان کے مضمون کے تعلق سے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں آج کل ان کے تنقیدی مضامین کا بالاشتہار مطالعہ کر رہا ہوں. ان کی کتابیں بھی آ چکی ہیں اور مستقل تنقید پر لکھ رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ کرناٹک میں ایک ایسا شخص ہے جو آسان راستوں کو چھوڑ کر افسانوں کو، نظموں کو، ان شاعریوں کو، ان راستوں کو چھوڑ کر ایک سنگلاخ راستے کو اس نے اختیار کیا ہے اور اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہے. میں نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں اور جس دو ٹوک انداز کو اپنی بات کہتے ہیں، منواتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بڑی مثال ہے. ہم کسی نہ کسی طرح عہد حاضر کے جو تنقیدی نظریات ہیں، جیسے جدیدیت ہوئی، مواد جدیدیت، اور پھر جیسا آپ نے بہت سارے نام ہیں، کنسٹرکشن، ڈیکنسٹرکشن، پتہ نہیں کیا کچھ کہاں سے یہ سب کچھ چلا آ رہا ہے معلوم نہیں. لیکن اس سب کے سیلاب میں تخلیقی ادب اور ادب کی اصل پہچان کہیں گم ہو گئی. داؤد محسن کی تمام کوشش یہ ہے کہ جو تخلیقی ادب لکھا جا رہا ہے اس کی سچی تفہیم ہو، اس کی سچی قدر و قیمت ہو، ہم اس کو پہچانیں. آپ کا کہنا یہ بھی صحیح ہے، بلکہ ہم سب اس دور سے گزر چکے ہیں کہ مارکسی تنقید کیا ہے، تاثراتی کیا ہے، جمالیاتی تنقید کیا ہے، تاثراتی تنقید کیا ہے. بیگ صاحب نے بھی بہت ہی مناسب سوال آپ نے اٹھایا کہ جب تک ایک تھیوری نہ ہو آپ
तनकीद का कैसे अदा कर सके। थियोरी होनी चाहिए, लेकिन अगर ये थियोरी एक तरफा है और आप एक मखसूस जावे नजर से ये अदब को आप देख रहे हैं, तो जाहिर है कि आप अदब के दूसरे हिस्सों को, दूसरी खूबियों को, उसकी दूसरी खुसूसियात को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस तरह उसका एक मजमूई महाकमा हो नहीं सकता। इसलिए हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एहतशाम हुसैन बहुत बड़े तरक्की पसंद निगार थे। आले अहमद सरूर के पास आपको बहुत मोतदिल अंदाज मिलता है, और जो भी तरक्की पसंद तरक्की निगाह रहा है उसका झुकाव मार्क्सिज्म की तरफ यकीनन रहा है, और उसके जरिए से उन्होंने जिन चीज़ों का इंकिशाफ किया वो हमारे लिए बड़ी कदर कीमत की हानि है। लेकिन हम जुज़ को कभी कुल कह नहीं सकते। ये नजरियाती तनकीद की एक बहुत बड़ी खामी है कि वो जब भी तनकीद करते हैं तो जुज़ को कुल बनाने की, मुतलक बनाने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है। आज ये तरक्की पसंदी, जदीदियत वगैरह से मावा जदीदियत में भी हालांकि दावा किया गया, नारायण साहब के बहुत बड़े बड़े मज़ामीन हैं, उन्होंने दावा किया है मावा जदीदियत किसी नज़रिए को नहीं मानती, वो बिल्कुल आज़ाद हो गई है। इसके फनकार जो कुछ कहना चाहता है वही कहता है। इसके बावजूद मैं आपको कहूँगा कि अजीब दबाव उसका फिर रहा है कि जो इसकी मावा जदीदियत की क़ियादत कर रहा है उसी के नज़रिए को वो बाजार लिखा हुआ नहीं है, बाजार वो उसकी कोई थियोरी नहीं है, लेकिन उसका असर एक हैवानाक असर ऐसा छाया हुआ है कि वो जो कहेगा वही होगी, बाकी सब छूट। लेकिन अब का आज का फनकार इस जाल से, इस शिकंजे से निकलना चाहता है। निकल पाया है किसी अंदर, उसकी तनकीद भी निकल रही है, और हो सकता है कि इसने अभी तक अपना फौरन दरियाफ्त नहीं किया, अपनी पहचान नहीं बनाई, उसकी शिनाख्त नहीं बनी, लेकिन आगाज हो चुका है। वो ये चाहता है कि फनकार, जैसे आपने बताया कि तनकीद की ज़बान एक क्लिशे की ज़बान है हमारे, बाद बदे लिखे नज़रियात, बदे लिखे इसके बाहर के जरिए हमारी तनकीद की जाती है। आज का तनकीद निगार उन सारी क्लिशेस को छोड़ चुका है। उसका मुखातिब कौन है? पढ़ने वाला कारी है। वो अपनी बात को इस अंदाज में आप तक पहुँचाना चाहता है कि बात आपकी समझ में आ जाए। तनकीद का असल मनसब नहीं, तब पहले तफहीम, फिर तज्जिया, फिर उसके बाद कद्र क़ीमत करता ही। इस तरह बड़ी शिकायतें थी कि हम किताबें खरीदते नहीं हैं, किताबें पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मेरा तासुर और मेरा तजुर्बा कुछ और बताता है कि अब बहुत सारे खाली किताबें खरीदने भी लगे हैं, पढ़ने भी लगे हैं, क्योंकि वो पढ़ने के काबिल हैं। पहले की जो किताबें थी वो पढ़ने के बाद आप 2 सफ़ा पढ़ते थे, आपका जी चाहता कि किताब उठाकर रख दीजिए। आज जो तहरीर आप शुरू करते हैं, जी चाहता कि पढ़ते जाओ, इसमें कुछ हमें हासिल हो रहा है, कुछ मालूम हो रहा है। मैं आपको बताऊँ कि हाजिर में कई किताबें हमारे जाली नहीं बल्कि असली दूसरे एडिशन उसके छपते हैं। अगर हमारा यही ख्याल है कि उर्दू में जो किताबें छपती हैं तो सभी किताबें बेच नहीं सकता, बांट देता है, तो ये दूसरे एडिशन की नौबत ना आए। जिनको बांटना तो बांट चुका, और बहुत से नए आगे आ गए जिनके लिए उसने दूसरा एडिशन छापा। तो मतलब ये है कि सूरत हाल बदल रही है। ये जो उन्वान आपने इस्तेमाल कर दिया है, बदलता नाम यही है कि हम खाली की बाजियाब कर रहे हैं, खाली वापस आ रहा है, खाली को भगा दिया गया था। अदब पढ़ने से इतना खराब अदब लिखा जा रहा था कि वो डरकर साहसीमा होकर भाग गया था। लेकिन अब चूंकि अदब पढ़ने के काबिल है, वो बहुत आला अदब ना सही, बहुत मियारी अदब ना सही, लेकिन अदब वो अदब जो पढ़ने के काबिल है, तो इस पढ़ने के काबिल के अदब की वजह से खाली वापस आ रहा है। और जब ये कारी वापस आ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो उसे जहाँ रहनुमाई की जरूरत है, तो नया तनकीद निगार, नौजवान तनकीद निगार, जैसे फारूक जी साहब के कौल आपने बताया कि हम तो अपने अहद के कारनामों को हम कह चुके हैं, नए फनकारों को अपना नाम खुद तलाश करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने की, बाकी होना भी चाहिए। तो नए फनकार ने नया नाम तलाश कर दिया। ये स्टेबलाइज हो रहे हैं, ये तरह का उबूरी दौर है। हम इस उबूरी दौर में तो नहीं कर सकते कि कोई बहुत आला पाए का तनकीद कारनामा पेश कर दे, बहुत आला पाए की किताब लिख दे, या ये कि हम उसको रेफरेंस वर्क की हैसियत से हम इस्तेमाल कर सकें। ये उबूरी दौर है, इसको स्टेबलाइज होने दीजिए। फिर नई पीढ़ी जो नई तनकीद के नए नजरियात तो ला ही नहीं रहे,
وہ بس اس کا نظریہ یہ ہے کہ ادب کی تفہیم ہو سکے اور ایسی تفہیم ہو سکے کہ وہ ادب سب تک پہنچ سکے. تو اس کو بھی ذرا سا منجمد ہونے کے لیے اسٹیبلائز ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے. اس سلسلے میں داؤد موسی بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں اپنے فنکاروں کو اپنے لکھنے والوں کو ہمیشہ جو ماہرین اور اسٹیبلشڈ فنکار ہیں ان کے پیمانے پر نہیں دیکھنا چاہیے. کیونکہ وہ ابھی اس دور سے گزر رہے ہیں, ان کو حوصلہ افزائی کیجیے, ان کی پذیرائی کیجیے, ان کی تحسین کیجیے, تو وہ جو جوہر ان کے اندر ہے اس کے پنپنے, پھلنے, پھولنے اور اس کو نمایاں ہونے میں کافی اچھا وقت لگے گا. تو میں واقعی آپ سے اتفاق کرتا ہوں, بہت ساری باتوں سے آپ کے میں اتفاق کرتا ہوں. آپ نے کئی باتیں بہت صحیح کہی ہیں کہ ہمارے ابھی حال تک بھی 10-15 سال تک ہمارے یہاں وہ دور تھا کہ جہاں تخلیق پر تنقید حاوی ہوگی. تخلیق نکلنے والا یہ دیکھتا تھا کہ اس نقاد کی جو نظریات ہیں کیا اس نظریات کے مطابق میں خلق کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ مجھے یہ تخلیقی فشار میرے اندر ہے, میں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کے اندر میری پذیرائی ہوگی. یہ بہت ہی حقیر مقاصد کے اس طرح کا تخلیق ادب لکھا جاتا تھا, اور یقیناً یہ تاریخ ادب میں آج اگر ہو سکتا ہے کہ اس پر گفتگو ہو جائے, لیکن وہ مستقل شکل یا مستقل مقام کبھی تاریخ ادب میں حاصل نہیں کر سکتے. اور نئے لکھنے والوں میں جیسا آپ نے بہت سارے نام دیے, سمیع تاریخ ہیں, صفدر امام قادری ہیں, احمد صغیر ہیں, میرے ساتھ یہ سب ہیں. لیکن ایک آخری بات میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرور خدا بہت سی تنقید کر رہے ہیں, اور ان کی زبان اتنی آسان ہے کہ ہم تاریخ ادب کا ایک معمولی طالب علم کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. یہ چند باتیں تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ ہی وقت لے لیا, اس لیے میں معذرت چاہوں گا آپ سے. لیکن مجھے بڑی تسکین کا احساس ہے کہ میں نے بہت اچھے مقالے سنے, اس سے خود بھی استفادہ کیا. میں نے نہ صرف آپ کے گھر سے جو مقالے ہم سن رہے ہیں اس سے یقیناً یہاں پر ایک تمغل کا احساس ہے.